Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataruvasya Kipasindhavacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vachalang Pangung Langhayatigirim Yat Kipatamahang Bande Paramananda Madhavam Vindhavai Tulsidev Vai Piya Vai Kesava Sacha Sna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvaran Deyam Sada Paribhavagnam Avishtaduham Tethas Padam Siva Virinchinutam Saranyam Vetatiham Panutapal Bhavadiputam Bande Mahapurusati Charunarvindam Yat Pada Pallavana Kachandamani Chataya Vispurjita Kamapi Gavavadu Swadarsi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kipam Kurusi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita Bhujau Kanaka Bodhato Sankirtanai Kapitaro Kamala Yathaksha Vishambaro Dijavaro Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasuroir Vandito Dibbarupam Bhuktin Jamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramani Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tabam Bhagam Narayano Priyamanangumadapaharam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vagisha Vadane Lakshmir Jasya Vaksasi Yasyasti Hidaya Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare Hare
हरे राम 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 हरे। असार संसार खलु दुःखरूपी विमोकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् जले त्वनीशम् पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभोक्तिनित्य। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, बद्ध जीवों का विपरीत रुचि का परिवर्तन करना, ये सबसे बड़ा दयामय गुरु वैष्णवों का काम है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, जीवों का विपरीत रुचि का परिवर्तन करना, ये सब सर्वापेक्षा दयामय गुरु वैष्णवों का काम है और कोई नहीं कर सकता। असार संसार खुलु दुःखरूपी विमोकः। बोलना बहुत आसान है, लेकिन हृदय से मानना बहुत कठिन है। बोलना आसान है, अनुभव करना बहुत कठिन है। संसार सुख का अंदर में सब डूबे हुए हैं, तमाम जगत, इसका बाहर कोई नहीं जाना चाहता है। भगवान बद्ध जीवों को बचाने के लिए, भगवान बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए तरह तरह का व्यवस्था रचना करके रखे हैं। संत महात्मा का रूप धारण करके जगत में विचरण करते हैं। शास्त्रों ग्रंथों का व्यवस्था रखा है, धाम, भगवान नाम, सारे के सारे व्यवस्था रखे हुए, जैसे कि बद्ध जीवों को किसी भी हालत से, एक बद्ध दशा से उद्धार किया जा सकता है। लेकिन बद्ध जीवों का अंदर में ऐसा कोई भाव ही नहीं है, ये बद्ध अवस्था से बाहर जाए, ऐसा कोई इच्छा ही नहीं बचा है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में लिखे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में लिखा, महाजनों का सारे के सारे कीर्तन, लिखनी, प्रवचन, सारे के सारे ये जगत का मंगल के लिए भगवान व्यवस्था किए हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन में लिखे हैं, आर केनो माया जाले परिते च जीव मिनो नहीं जनो बद्ध होए रवे तुमी चिरदिन। অতি তুচ্ছ ভোগ আসে বন্দী হয়ে মায়া পাশে রহিলে বিকৃত ভাবে দণ্ড যথা পরাধীন। আর কেন মায়া জালে পরিতেছ জীব মিন নাহি জানো বদ্ধ হয়ে রবে তুমি চিরদিন। এখনো চেতন পে কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধু জলে অনায়াসে থাকো তুমি হয়ে কৃষ্ণ পরাধীন। আর কেন মায়া জালে পরিতেছ জীব মিন নাহি জানো বদ্ধ হয়ে রবে তুমি চিরদিন। कीर्तन का अंदर में जीवों का, बद्ध जीवों का दशा, इस संसार सागर में जीव रूपी मीन, मीन माने मछली, जीव रूपी मीन इस संसार सागर में तैर रहा है। मानो कैसा आनंद, भरपूर आनंद में डूबे हुए हैं, लेकिन ये जानता नहीं, जीवों का अंदर में ये भावना बहुत मुश्किल से आता है।
ये जगत का जो आनंद है कुछ नहीं है, इसका बाहर जाना है, ये भावना आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग स्वाधीन हैं, वी आर एंजॉइंग लिबर्टी। हम लोग का अंदर में बद्ध दशा में ऐसा विचार है कि महाराज हम लोग आनंद ले रहे हैं, हम लोग, हमारा जो स्वाधीन भाव है इसका उपयोग कर रहा है, आनंद ले रहा है। लेकिन जिसको आप सोच रहे हो कि, जिसको आप सोच रहे हो कि ये स्वाधीन, हम लोग स्वाधीन हैं, लेकिन विचार करके देखना ये स्वाधीन नहीं है, ये पराधीन है। हमारा स्वाधीन मतलब माया का अधीन। बद्ध जीवों का स्वाधीनता, लिबर्टी का मतलब है माया देवी का अधीन। कहाँ तक जाएगा बेचारा। लेकिन भगवान का अधीन बन जाए, भगवान का अपना निजीजन बन जाए, भगवान का सेवक बन जाए, तो इसका नाम है वास्तविक मुक्ति अवस्था। इसी का नाम है मुक्त अवस्था। भगवान का जो सेवक बन जाए कोई बद्ध जीव, कभी गुरु वैष्णव का संग लेकर धीरे धीरे चलते चलते कभी भगवान का सेवक बन गया, इसी का नाम है मुक्ति, इसी का नाम है लिबर्टी। लेकिन बद्ध जीवों का जो मिसकंसेप्शन है, हम लोग मुक्त है, जो चाहे कर लेंगे। अपना जो लिबर्टी है इसका दुरुपयोग करते करते, ये दुरुपयोग करते करते ऐसा बद्ध दशा में पहुंच जाते हैं, वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये आनंद समझते हैं, ये सब, यही इसका लिए गौड़ीय दर्शन में एक विचार आता है। गौड़ीय दर्शन का विचार है कि जब भगवान का सेवक बन जाए तभी मुक्त होता है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित मुक्ति। मुक्ति का जो जनरल कंसेप्शन, हम मुक्त है, हम स्वाधीन है, जो इच्छा जो मर्जी कर लेंगे, ये जो विचार है ये पागलपंती है और कुछ नहीं है, ये नादानी है और कुछ नहीं। हम जो चाहे कर रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं जीवों को जो स्वाधीनता दिया गया, जो लिबर्टी दिया गया, भगवान ये स्वाधीनता को छीनना नहीं चाहते। भगवान देखना चाहते हैं कि कब कैसे वो अपना मर्जी से सब समझने के बाद हम ही एकमात्र वस्तु है, संपत्ति है, जब हमारा ओर चलना शुरू कर दे, हमारा ओर आने का व्यवस्था करे, ये अच्छा है। भगवान किसी को ऊपर जोर जबरदस्ती, किसी का ऊपर रोक टोक नहीं लगाते। भगवान किसी का ऊपर रोक टोक नहीं लगाते कि जोर जबरदस्ती आ मेरा पास, ऐसा नहीं। भक्तिविनोद कह रहे हैं अगर भगवान जोर जबरदस्ती करते, अगर भगवान किसी जीव का साथ, बद्ध जीवों के साथ जोर जबरदस्ती कर देते, इसमें मजा नहीं आता। जीव अपना मर्जी से धीरे धीरे समझ के हमारे पास आए, यही भगवान का इच्छा है। इसका जो अपैरेंट लिबर्टी है, इसका मिसयूज करे, दुरुपयोग करे तो उसका बंधन है। भगवान को इसका लिए कोई आरोप, दोषारोप करने का कुछ है ही नहीं। ये तो सब व्यवस्था रखे हुए है भगवान। अगर कोई व्यवस्था नहीं रखे होते तो हम लोग दोष देते। सब व्यवस्था, गुरु वैष्णव, शास्त्रों, धाम, नाम, व्रतो, उपवास, सारे के सारे व्यवस्था रखे हैं। रख के हमारा पास पूरा खोल दिया है, तो इच्छा है आ जा मेरा पास, नहीं तो जा।
गुरु जी कहते थे अक्सर, हरिरेवो सदारध्यो सर्वदेवेश्वरेश्वरो एते ब्रह्म रुद्याद्या न अवज्ञया कदाचन। गुरु जी इस श्लोक को कहते थे शुद्धोदय, हरिभक्ति शुद्धोदय ग्रंथों से। हरिरेव सदारध्यो सर्वदेवेश्वरेश्वरो एते ब्रह्म रुद्याद्या नावज्ञया कदाचन। भगवान हरि परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय जो है, इनके कृपा से तमाम जगत का सृष्टि स्थिति और भंगो अर्थात जन्मादसो यतो अन्मयद इतरतश्चार्थेषु सविज्ञ सराट, सारे चल रहा है। तमाम दुनिया का जन्मो स्थिति एवं भंगो अर्थात विनाश जिनके द्वारा चल रहा है, इनको ही कोई जानते नहीं। ये एब्सोल्यूट ट्रूथ परम वस्तु को कोई जानते नहीं, और जानने का कोई चेष्टा भी नहीं, इसका अंदर में कोई चेष्टा ही नहीं। एकमात्र परात्पर अखिलेश्वर जगत कारण जगन्नाथ भगवान, इनके ही भजन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा रुद्रो और बाकी सब देव देवी है उसको अपमान करे, ऐसा नहीं है। अपमान करने का व्यवस्था नहीं दिया गया शास्त्रों में, अपमान करने का व्यवस्था नहीं दिया गया। सारे को सारे सम्मान करो, भगवान का दास दासी है, इसको अपमान मत करो। लेकिन ये जान के रखना, परात्पर अखिलेश्वर भगवान करुणा वरुणालय भगवान जगन्नाथ दामोदर भगवान, यही एकमात्र आराध्य वस्तु। गौड़ीय मठ का यही मकसद है, गौड़ीय मठ का यही गुप्त सिद्धांत तो है, इसके बाहर हम लोग जाना नहीं चाहते। भगवान और जितना सारे नियम कानून, आप लोग तो जगत में भी बहुत सारे नियम कम बना के रखे हैं। जगत में नियम कानून नहीं है क्या? कितना सारे कानून है, नियम है, सबका तोड़ फोड़ चल रहा है। लॉ मेकर इज द लॉ ब्रेकर, चल रहा है सब कुछ। पूरा दुनिया लॉज एंड ऑर्डर ये बने हुए बना के रखे हैं, लेकिन कौन मान रहे? कौन मान रहा है? ऐसा करके पूरी दुनिया में जैसे नियम कानून है, वो तमाम दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए इसका जो तो तमाम दुनिया का जो कारोबार, तमाम दुनिया में जो बृहद यज्ञ चल रहा है, कारोबार चल रहा है, इसको व्यवस्थापित करने के लिए जरूरी है। इसलिए व्यवस्था कायम। और विशेष करके भक्ति जगत में, विशेष करके ये भजन जगत में जितना सारे नियम कानून है, तरह तरह का नियम कानून है महाराज, कहाँ जाए? इतना नियम कानून है, ये व्रत है, उपवास है, ये करो फलाना करो, ये चल ही रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये दामोदर वो तो गया, ये गया, ऐसा चलते रहते हैं। बद्ध जीवों का लिए ये बड़ा ये अनुशासन, बद्ध जीवों का लिए ये अनुशासन मानना बहुत कठिन पड़ता है, लेकिन करना ही पड़ेगा, नहीं करने से चलेगा। जितना सारे नियम कानून है, गुरुजी बोलते थे, इसका मकसद एक है। वो क्या है? भगवान को याद रखना, भगवान को भूलना नहीं। भगवान को हर वक्त याद रखना और भगवान को भूलना नहीं। आई बात समझ में? एक विधि एक निषेध है।
हर वक्त भगवान को याद रखना, ये विधि है, और भगवान को कभी भूलना नहीं, ये निषेध है। सर्वे विधि निषेधः सुरतरयो रेवो किंकरः। जितना सारे विधि है, नियम कानून है हमारा शास्त्रों में, हरि भक्ति विलास में, इधर उधर जहां भी है, जो भी नियम कानून जितना सारे, सर्वे विधि निषेधः सुरतरयो रेवो किंकरः। सुरतर माने स्वर्ग का जो वृक्ष होता है ना, कल्पतरु, इसका मापिक एक विधि एक निषेध। हर वक्त हरि को स्मरण रखना और कदापि हरि को भूलना नहीं, ये विधि ये निषेध है। लेकिन ये तमाम जो हमारा शास्त्रों में विधि निषेध है, उपवास करना है, ये करना है, सारे के सारे व्यवस्था दिया हुआ है। ये सब कुछ का पीछे एक ही राज है, भगवान को सर्वगत याद रखना, भगवान को भूलना नहीं। और तमाम जगत भगवान का सेवा के लिए ही है, हमारा एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। हमारा एंजॉयमेंट के लिए दुनिया नहीं है, दुनिया का चीज। बहुत दिन पहले का बात है, गुरुवर्गों का जमाने में हमारा परमवीर केशव गोस्वामी महाराज तो पूर्वाश्रम में रहते थे। एक दफे खबर मिला कि भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद गौड़िया मठ के तरफ से आ रहा है गांव में, बरिशाल डिस्ट्रिक्ट किसी विशेष जगह हरि कथा बोलने के लिए आ रहा है। इतना बड़ा महापुरुष, पूरा गांव वाले ने निश्चय कर लिया कि हम जाएंगे। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज तो उस समय ज्यादा उम्र नहीं है, वो भी आए हुए हरि कथा सुनने के लिए। हरि कथा सुनते सुनते एक दफे प्रभुपाद ने एक बात कह दी। वो क्या है, कि हम भगवान का सेवा के लिए पूरा जगत का जितना सारे जीव है, सब कोई को बलि चढ़ा सकता है। ये सुनकर इनके दिमाग घूम गया, क्या बोल रहा है, ये तो साधु है, परमहंस वैष्णव है, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आई कैन सेक्रीफाइस एन काउंटलेस जीवा फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ भगवान। क्या बोल रहा है, हाय राम, क्या है। सुनो, हैरान हो गया, ये रिवॉल्टिंग वर्ड है, बड़ा हैरान करने वाला बात है। बाद में अपने आप समझ में आ गया, क्योंकि ये प्रभुपाद का पार्षद है, नित्य पार्षद, लीला कर रहे हैं ऐसा। तुरंत समझ गया, अरे ये महापुरुष कभी गलत नहीं बोल सकते, ये महापुरुष का वाणी में कोई गलती नहीं निकल सकता। सचमुच वाकई ही ये जो प्राकृतिक जगत है, मेटेरियल जगत है, ये प्राकृतिक जगत जो है, ये प्राकृतिक जगत क्या है, ये तो नेगेटिव वर्ल्ड है, ये तो प्राकृतिक जगत है ना, ये तो प्राकृतिक जगत है। ये प्राकृतिक जगत में तो जितना सारे मैटर है, जो कुछ भी है, इसका वैल्यूएशन क्या हो, इसका क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या हो सकता, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ल्ड है। तमाम ये नेगेटिव जगत को एकत्रित करो, फिर भी वैकुंठ जगत का एक धूलिकण का बराबर नहीं हो सकता। वैकुंठ जगत का एक धूलिकण, वैकुंठ जगत का एक धूलिकण, इसका कीमत बहुत ज्यादा है,
जबकि ये जगत का सारे मटेरियल जगत को एक जगह एकत्रित कर दो, फिर भी वैकुंठ जगत का एक धूलिकण का बराबरी नहीं हो सकता, संभव नहीं। क्योंकि ये है पॉजिटिव वर्ल्ड और ये है नेगेटिव वर्ल्ड। ये प्राकृतिक जगत है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, अपराकृत जगत का विकृत प्रतिफलन है। इसमें जितना ही विचार करो, देखोगे जितना ही विचार करते रहो, देखोगे सारे के सारे नेगेटिव है, इसका कोई कीमत नहीं। लेकिन अपराकृत जगत में एक धूलिकण भी, क्योंकि बीच में अगर जीरो को स्थापन करके आप पॉजिटिव राइट हैंड साइड चलते रहोगे, बीच में जीरो को रखकर राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 ऐसा करके, तो जितना आप दूर जाओगे उतना ही संख्या का वैल्यूएशन बढ़ते रहेगा। ये नियम है। 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है। जितना ही आप आगे बढ़ोगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, उतना ही इंटीजर और जो पॉजिटिव इंटीजर है इसका वैल्यूएशन बढ़ते रहे, वो बढ़ते रहे राइट हैंड साइड। लेकिन ऋणात्मक दिग में, नेगेटिव तरफ, बायां तरफ चलना शुरू करो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 चलते रहो। देखोगे जितना आप दूर भागोगे, जितना समझोगे कि इसका कीमत बहुत है, ये तो 9 है 8 है, ये इंटीजर 8 है, नेगेटिव इंटीजर है। इसलिए नेगेटिव इंटीजर का वैल्यूएशन जितना आप चलते रहोगे बाएं तरफ, उतना ही कमती होते रहेगा। अर्थात -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, ऐसा करके। ठीक इसी मुताबिक ये जगत का वास्तविक विचार के द्वारा आप समझने का कोशिश करो। ये नेगेटिव वर्ल्ड है, प्राकृतिक जगत है, प्राकृतिक जगत का वैल्यूएशन नहीं। और इसी में जिसका जितना सारे डिग्री है, जितना सारे पोजीशन है, जितना सारे संपत्ति हासिल किए हुए हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा जितना सारे हासिल किए हुए हैं, सारे के सारे विचार करो, इसका कोई कीमत नहीं है, कीमत कुछ नहीं है, सिर्फ अभिमान है। अहंकार करते रहेंगे, हमारा इतना है, हमारा इतना है, मैं फलाना हूँ, वो हूँ। लेकिन वास्तविक विचार करके देखो तो इसका कोई कीमत है नहीं, कोई कीमत है नहीं। ऐसे ही दुनिया है। जो विचार कर रहे थे उसमें ये जो हमारा अभी चौमासा जो व्रत है, चौमासा व्रत है, ये चौमासा व्रत का अंदर में ये जो कार्तिक व्रत है, दामोदर व्रत है, उज्जा व्रत है, ये अंतिम महीना है। ये अंतिम महीना, यद्यपि चौमासा व्रतों का बारे में, ये बहिर्जगत में, मेटेरियल वर्ल्ड में, विशेष करके जो लोग वैदिक संस्कृति का बाहर है, विशेष करके जो लोग वैदिक संस्कृति का बाहर है, ये लोग चौमासा का बारे में कुछ सोचते ही नहीं, जानते ही नहीं है। सोचेगा तो दूर की बात है, वो जानते ही नहीं है चौमासा व्रत तो क्या है। ये चौमासा व्रत तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, भागवत जी महापुराण में भी है, बाकी दूसरा पुराणों में भी आता है। चौमासा व्रत तो चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में
श्रीमद् भागवत जी महापुराण में हर जगह आपको मिलेगा। चौमासा व्रतों का बारे में है, यहाँ तक कि श्री चैतन्य महाप्रभु परात्पर अखिलेश्वर स्वयं आचरण करके दिखाए हुए हैं। इन्होंने स्वयं आचरण करके दिखाए हुए हैं कि चौमासा व्रतों का कैसे इसका पालन करना चाहिए। ऐसे तो चौमासा व्रत का बारे में सच पूछो तो हमारा वैष्णव समाज में भी दिन पे दिन इसका आदर कमती होते जा रहा है। सच पूछो, बुरा ना मानो तो ये सच्चा बात है। दिन पे दिन हमारा ये जो वैष्णव समाज में, ये वैष्णव समाज में भी ये चौमासा व्रतों का जो इसका जो आदर है, आदर सम्मान है, ये भी दिन पे दिन कमती होते जा रहा है। क्योंकि कोई नहीं चाहता, कोई कष्ट नहीं चाहता। Nobody like to suffer, they like to enjoy। ये तब उन लोग का मूड है। भजन जीवन में वो लोग कोई कष्ट नहीं सहन करना चाहता है। लेक्चर दे दे, भाषण दे दो खूब, लेकिन कोई कष्ट नहीं करना चाहता। व्रत उपवास इतना नियम कानून, अरे महाराज कौन पालन करे आजकल का जमाने में, ऐसा बात है। लेकिन सच पूछो, चौमासा जो लोग पालन नहीं करते हैं, अनंत काल के लिए वो लोग का नरक में जाना ही व्यवस्था है। वो भी सही ढंग से चौमासा पालन करना चाहिए। चौमासा का आदर होनी चाहिए। एक चौमासा सही ढंग से पालन करो तो इसमें क्या हो, आपका भगवत गुरु वैष्णव का अनुगत्य में दीक्षा लेने का बाद ये पालन करते चलो। एक चौमासा व्रतो कंप्लीट रूप से एज इट इज इन टोटो, आप देखोगे आपका भगवत धाम में स्वागत करने आ जाएगा। स्वागत और कुछ नहीं। लेकिन ये चौमासा व्रतों का बारे में आजकल धीरे धीरे इनके आदर सम्मान धीरे धीरे कमती होते जा रहा है। परम पूज्यपाद केशव गोस्वामी महाराज जी ने बताया, जो लोग चौमासा व्रतों ना पालन करें, ये लोग वैष्णव है ही नहीं। ये लोगों का लिए नरक गमन निश्चित सुनिश्चित है। पक्का जो नियम है पालन करना चाहिए। नियम का अंदर में बहुत सारे नियम है। पहले ही हम शुरुआत में बता दिया, भगवान को याद रखना, भगवान को भूलना नहीं है। दैट इज द मोस्ट बेसिक पॉइंट। ये सबसे बेसिक पॉइंट, भगवान को स्मृति में रखना, भगवान को भूलना नहीं। ये नियम पक्का है। बाकी जो नियम बनाया हुआ है सब ये पिवोटेड पॉइंट है। जितना सारे हजारों नियम कानून शास्त्रों में है, सारे नियम कानून सब्सक्राइब कर रहा है ये सेंटर पॉइंट जो है, एक ही नियम को। हरि को स्थिति में रखना, हरि को भूलना नहीं, बस यही। चौमासा व्रतों में बहुत सारे नियम हैं। अब महाराज कौन पालन करे? बहुत सारे नियम नीति तो है ही है। पूरा चौमासा में बीन सोयाबीन आदि, अरे आमिष का बात तो पूछो ही मत। अगर आमिष का बारे में अगर बताया गया तो आमिष बताया गया किस लिए? वैष्णव लोग तो आमिष खाते ही नहीं। आमिष का सवाल कहाँ से आ गया? आमिष का सवाल तो आता ही नहीं, कहाँ से आया? बोले आमिष का मतलब राजमांस, कलाई का दाल, उड़द दाल जिसको बोलते हो, ये सारे के सारे आमिष का अंदर में गिनती होता है। भले ही आप समझोगे नहीं ये कैसे आमिष बन गया महाराज, लेकिन शास्त्रों में है। मांस, कलाई, उड़द दाल आदि
ये सब का आदर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आदर नहीं करना चाहिए। राजमांस आदि इसका आदर नहीं करना चाहिए। इसका अवॉइड करना चाहिए। चौमासा का अंदर में पहला मास में सावन में शाक आदि, शाक जाने स्पिनिच, आषाढ़ महीना है, धीरे धीरे इसमें बहुत सारे नियम हैं। सावन महीना में शाक आदि निषेध है। भादो महीना में दही, आश्विन महीना में दूध, और कार्तिक महीना में महाराज, कार्तिक महीना में तो एकदम सीधा सामान्य रूप से आहार विहार आदि करके बस शरीर को सही रखना और तपस्या करते, सारे के सारे नियम पालन करके आगे बढ़ना। ये सब सारे नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं। पूरा 4 महीना में अगर कोई लवन सॉल्ट, लवन छोड़ दे, चौमासा के अंदर में लवन लिया ही नहीं खाना में, जैसे वैष्णवानाम यथा शंभु, शंकर भगवान का जो भोग बनता है ना, शंकर भगवान का जो भोग बनता है, शंकर भगवान का भोग का अंदर में लवन नहीं दिया जाता। अब शंकर भगवान खाते। जो लोग चौमासा में लवन का आदर ना करे, उसका कंठस्वर अच्छा होगा। पूरा चौमासा का अंदर में मधु मतलब हानि, इसको आदर नहीं करना चाहिए। ये सब बहुत सारे नियम है। चौमासा का अंदर में बहुत सारे नियम हैं। जो साधारण महीना में आप लोग कोई अगर तेल आदि यूज करे, कार्तिक महीना में निषेध है। सरसों का तेल पूरा निषेध है। ये मूंगफली का तेल या तो नारियल तेल अगर पक्का हो तो, परफेक्ट हो तो, प्योर है तो, और नहीं तो घी का पकवान, घी के द्वारा थोड़ा, अब घी मिलता ही नहीं, असली घी कहाँ मिले, ऐसा करके सरसों का तेल निषेध है। सब कुछ निषेध है। सोयाबीन, बीन, मटर, कलाई सब निषेध है। करके व्रत का आदर करना चाहिए। और पूरा 4 महीना अगर सही ढंग से पालन करे तो कहना क्या है, वो तो मालामाल हो जाएगा। भक्ति धर्म बहुत मुश्किल से करता है कोई। ऐसे तो आजकल का जमाने में पालन करने का कोई आदर ही नहीं है। और फिर भी अगर कोई करे तो हर मठ मंदिर में, हर साधु संतों के लिए, यहाँ तक कि ऑर्डिनरी आदमी, जो लोग भागवत धर्मों पालन अभी शुरुआत नहीं किया, भागवत धर्म नहीं पालन, जनरल जो धर्मों है, जो धर्मों का बारे में जो जनरल कंसेप्शन है हिंदू समाज में, वो उतना ही करते रहते हैं। यद्यपि इसका इनर मीनिंग जाओ, गो ब्राह्मण वैष्णव भगवान धाम तुलसी इसका सेवा ना करे तो कुछ नहीं है। फिर भी ऐसा करके आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े। चौमासा सिर्फ वैष्णवों का लिए विधान है ऐसा कुछ नहीं है। चौमासा हर आदमी के लिए, चौमासा सिर्फ वैष्णवों का लिए ऐसा नहीं है। चौमासा सिर्फ वैष्णव का लिए ऐसा नहीं है। चतुर्वर्णों का जो व्यवस्था रखे हैं भगवान, चतुर्वर्णों जो व्यवस्था रखे हैं, सारे के सारे, यहाँ तक कहने का मतलब है वैदिक संस्कृति का अंदर में जो लोग पढ़ता है सब कोई का लिए चौमासा ये पालन करना चाहिए।
चाहे वो बाहरी विचार में वैष्णव धर्म पालन नहीं कर रहा है, फिर भी चौमासा वो पालन जरूर करे। चौमासा का पालन इतना इम्पोर्टेंट है। चौमासा के लिए सारे सब स्मार्तो ब्राह्मण है, दुनिया का जो 4 वर्णों का जो है, ब्राह्मण, क्षत्रियो, वैश्यो, शूद्रो, यहाँ तक कि अंतो जो व्यक्ति अगर करना चाहे वो भी करना चाहे तो करे, इसका लिए मंगल ही है। ऐसे तो अक्सर नहीं करता ये लोग, लेकिन करे तो अच्छा है। ये चौमासा का विधि इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका बारे में जितना ही बोलो उतना ही कम है। श्री श्रीमन महाप्रभु स्वयं चौमासा पालन करने का जो लीला किया है आप लोग जानते ही होंगे। दक्षिण भारत में श्रीरंगम में वेंकट भट्टू का घर में महाप्रभु ठहरा था। ये भी वेंकट भट्टू रिक्वेस्ट किया, प्रभु चौमासा शुरुआत होने जा रहा है, प्रभु चौमासा शुरुआत होने जा रहा है, वाई नॉट यू स्टे इन आवर हाउस। चौमासा शुरू होने जा रहा है तो कृपा करके आप इधर रह जाओ। प्रभु बोला ठीक है, जो मर्जी। पूरा चौमासा का एक एक दिन, एक एक घंटा महाप्रभु ने संकीर्तन, रंगनाथ श्रीरंगम, श्रीरंगनाथ मंदिर का दर्शन, कीर्तन, नित्य, ये सब करके पूरा महीना हरि कथा इष्टगोष्ठी करके पूरा महीना को इतना सम्मान दिया कि मत पूछो। वेंकट भट्टो, तिरुमल भट्टो और प्रबोधानंद सरस्वती पाद, ये इन लोगों का ही पूर्वाश्रम में भ्राता है, भाई है। लेकिन वो सन्यास लेके श्रीरंगम, ये अष्टम वैकुंठ का अंदर में, 8 वैकुंठ का अंदर में ये श्रीरंगम को भी गिना जाए। अष्टम वैकुंठ में आता है नैमिष अयोध्या, नैमिष क्षेत्रों, फिर अयोध्या, नैमिष क्षेत्रों, फिर इसका बाद आपका जो क्या कहे वो जो जहाँ भगवान द्वारिका हैं, श्रीरंगम, सारे के सारे, ये तो हमारा बद्रीनारायण, सब विचार करके देखो, इस सारे के सारे ये वैकुंठ है। इसमें अष्टम वैकुंठम है ये आपका नैमिष क्षेत्र। सो श्रीरंगम का बारे में शास्त्रों में भी आता है। तो श्रीरंगम जो है, ये श्रीरंगम वैकुंठ है, भौम वैकुंठ। ये भौम वैकुंठ, आपको अगर लगे कि महाराज ये वैकुंठ कैसे हो सकता है, शायद आपने साधु संग नहीं किए, इसलिए आपको पता नहीं है, सुने नहीं आ रही। जो वैकुंठ जगत अपरागिक जगत में है, जो वैकुंठ जगत गोलोक धाम आदि वैकुंठ जो है अपरागिक जगत में तो है ही है, लेकिन भगवान ये जगत का आम आदमी को मंगल करने के लिए कृपा करके इस जगत में वैकुंठ जगत के लाए हुए हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को लाए हुए हैं, जाओ आप पुराण में देखो, भगवान श्री कृष्ण अपराकित जगत से गिरिराज महाराज, राधा कुंड, श्याम कुंड, यमुना, सारे के सारे अपराकित जगत से इधर लाए, अवतीर्ण हुए हैं। और अवधपुरी, अयोध्या धाम, ये भी रामेश्वर है, जहाँ भी जाओ वो सारे के सारे जो वैकुंठ है, ये सारे के सारे वैकुंठों अपरागिक जगत से बद्ध जीवों को बचाने के लिए कृपा करके पधारे हुए हैं इधर। इसलिए इसमें तर्क उठाने का कोई अवसर नहीं है। श्रीरंगम वैकुंठ क्षेत्रों, वृंदावन में भी ऐसा कई सारे उदाहरण हैं
हमको जानकारी है, हम जानते हैं वृंदावन का अंदर में भूतेश्वर में रहता था। भूतेश्वर ने गोपेश्वर, गोपेश्वर का अंदर में कांच मंदिर है, पीछे गैन गुदरी है, उसका आगे इसका मुकान है। बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी, और नाम बताने का दरकार नहीं है। बड़ा 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 भारी प्रवचन देते थे वृंदावन में। उसका लड़का भूति कृष्ण था, जो भी है छोड़ो। अब पिताश्री अपना घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वृंदावन का अंदर में ही सब छोड़ दिया। वृंदावन का अंदर में ही ये छोड़ के, गोवर्धन का छोड़कर दूसरा जगह रह, किसी जगह रह रहा है। अब जिंदा है कि नहीं मालूम नहीं है, मालूम नहीं है वो जिंदा है कि नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है जगत का हिसाब से। वो उसका मुकान है गोपेश्वर का सामने। वो सन्यास लेने का बाद छोड़ के कहाँ जाए, बहुत सारे तर्क वितर्क होता है। प्रकाशानंद सरस्वती, प्रबोधानंद सरस्वती एक आदमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका बहुत सारे प्रमाण मैं दे सकता हूं। किताब भी 12 साल पहले पब्लिश किया गया। प्रकाशानंद सरस्वती और प्रबोधानंद सरस्वती एक आदमी नहीं। भाई सहजिया तुम्हें की गौड़िया इसका हेड का अंदर में कभी हो नहीं सकता। जब कोई आदमी को सन्यास लेने का जरूरी है, अगर उसका पूर्वाश्रम वृंदावन में ही है, अरे वृंदावन छोड़ के कहाँ जाए, सब छोड़ के हमारा स्थान, रहने का स्थान कहाँ होना चाहिए। ये तो महाप्रभु और राय रामानंद का अंदर में सर्वत्यागी, सर्वत्याग करके जीवों का कहाँ रहना चाहिए, बोले धाम वृंदावन। तो वृंदावन उसका पूर्वाश्रम है, भले ही सन्यास ले लिया, वृंदावन छोड़ के बेचारा कहाँ जाए। हाँ हो सके कि घर में नहीं आएगा, घर में नहीं आ सकता, लेकिन रहेगा तो वृंदावन में। गोवर्धन परिक्रमा करेगा, भजन करेगा, नाम करेगा, राधा कुंड सानकुंड, कहाँ जाए बेचारा। ऐसे श्रीरंगम पहले ए प्रकाशानंद और प्रबोधानंदो, एक व्यक्ति बहुत तर्क वितर्क चलते आ रहा है, लेकिन एक बिल्कुल नहीं है। प्रबोधानंद सरस्वती का पूर्वाश्रम उधारी है, लेकिन सन्यास लेने का बाद वो क्या करे बेचारा। कावेरी नदी का तट पर कोई भजन कुटीर बना की, या श्रीरंगम मंदिर का आजू बाजू में भक्तों लोगों का रहने का व्यवस्था बहुत सारे है। आप वृंदावन में जाओ देखोगे, एक मंदिर है वहाँ रंगनाथ का, वहाँ वृंदावन में, उसका आजू बाजू में सारे भक्तों लोगों का रहने का व्यवस्था वो लोगों का मंदिर का तरफ से किया गया। तो हो सकता, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है कि वो सन्यास लेके घर में। महाप्रभु वैकुंठनाथ साक्षात परात्पर अखिलेश्वर जब पधारे हुए हैं, अगर चैतन्य महाप्रभु मेरा पूर्वाश्रम में पधारे तो हम हमारा सन्यास का तिलांजलि देके भागेंगे देखने के लिए, हम भागेंगे नहीं। अरे जब चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, वो हमारा पूर्वाश्रम में आए हुए हैं, तो सन्यास का क्या करें हम। सन्यास का मकसद क्या है, प्रभु का दर्शन, प्रभु का सेवा। तो हम तो हम तोड़ फोड़ के चले जाएंगे, हम नियम नीति सब तोड़ फोड़ के चले जाएंगे महाप्रभु का दर्शन के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पागलपंथी है। तो महाप्रभु जी ने चौमासा का टाइम में उधर रहकर पूरा के पूरा चौमासा का सम्मान किया, आदर किया। और महाप्रभु जब सन्यास लेने का बाद नीलाचल धाम में रहते थे, उस समय में भी देखो
सारे भक्तों लोग जो है, गौरंग महाप्रभु का पार्षद है, सब भक्तों लोग सारे के सारे कहाँ कहाँ से इकट्ठा होके महाप्रभु का चरण कमल में पहुंच जाते थे। ये विधान है। बहुत सारे कीर्तन भी है इसका बारे में। गौर ब्रजवने भेदना मानिबो होइबो बरजवासी। दिमाग में घुसना बहुत मुश्किल है। गौर और ब्रजवन अर्थात मेरा कहने का मतलब है, यहां से जितना सारे भक्तों लोग दौड़ रहा है, दे आर ऑल ब्रजवासी। नवद्वीप वासी, दे आर ऑल्सो ब्रजवासी। नवद्वीप वासी, दे आर ऑल्सो ब्रजवासी। वाई नॉट? वृंदावन एंड नवद्वीप ऑल नॉन डिफरेंट। गौर ब्रजवने भेदना मानिबो होइबो राधारो दासी। दिस कीर्तन लिखा हुआ है। तो ये ब्रजवासी सारे के सारे प्रभु का दर्शन करने के लिए, प्रभु का साथ चौमासा व्रत पालन करने के लिए ये लोग बड़ा एंथुसियास्टिक मूड, पागल का माफी, और दौड़ते थे प्रभु का चरण में। प्रभु का साथ विहार करेंगे, नित्य कीर्तन, प्रभु का संग, प्रभु का, और बीच बीच में सारे चौमासा का नीति पालन करते हुए जो विधि निषेध है, इसमें भी हो जाता, इसमें भी हो जाता सारे के सारे। ऐसा करके पूरा चौमासा व्रत को सम्मान करते थे महाप्रभु का अनुगत्य में। इस सारे के सारे हमारा अद्वैत गोसाई, नित्यानंदो, शिवास पंडित से लेकर शिवानंद सेन, सब कोई एक साथ इकट्ठा होकर सारे के सारे पुरुषोत्तम धाम महाप्रभु के चरण कमल में, रथ यात्रा का टाइम में, रथ यात्रा का टाइम में, रथ यात्रा का टाइम में पहुंचते थे, और रथ यात्रा का टाइम लेकर रथ यात्रा का नित्य कीर्तन आदि, क्योंकि रथ यात्रा का बाद ही जो एकादशी है, उसका बाद हमारा स्वयं एकादशी होता है। चौमासा का नियम है शयन एकादशी से उत्तान एकादशी, शयन एकादशी से लेकर उत्तान एकादशी, ये जो चौमास 4 मंथ, शयन एकादशी से लेकर भगवान शयन कर रहे हैं, शयन एकादशी से लेकर पूरे उत्तान एकादशी तक पूरा चौमासा व्रतों का पालन करना जरूरी है। और वैष्णव समाज में ये भी विधान है, कोई पौर्णमासी से पौर्णमासी तक, पौर्णमासी पूर्णिमा अप टू पूर्णिमा, और सम ग्रुप फ्रॉम द्वादशी टू द्वादशी, दिस द्वादशी आफ्टर शयन एकादशी द्वादशी, अप टू दैट उत्थान एकादशी, आफ्टर दैट द्वादशी। 3 rules and regulations are there। 3 प्रकार का चौमासा व्रतों सम्मान करने का विधान है, लेकिन उसमें भागवत जी महापुराण में जो है, अकॉर्डिंग टू भागवत जी महापुराण, इट इज रिटन शयन एकादशी टू उत्तान एकादशी, बट स्टिल हमारा केशव गोस्वामी महाराज जी ने बताया, इट इज मोर प्रैक्टिकल टू फॉलो पूर्णिमा टू पूर्णिमा, बट एनी वे वी विल हैव टू सेव आवर, से we can get extra facility। इसमें बहुत सारे नियम भी है। एकादशी तो एकादशी यू पालन करो, एकादशी से कुछ ऐसा भी वैष्णव है जो एकादशी से एकादशी पालन करे और व्रत भंग करे, कोई विशेष पारण के द्वारा, विशेष स्पेशल पारण के द्वारा व्रत का भंग करे, but anyway they are going to shave their head on Purnima. They can extend. They can break their vrto by eating something which is unusual, which is not usual rules. They can break, but still they can continue up to Purnima to shave their head. That also doing. But Keshav Goswami Maharaj ji ने कह रहे हैं, ये जो
हमारा सेव करना है ना, ये सारे के सारे सेव करना है, तो केशव गोस्वामी महाराज का कहना है अगर पूर्णिमा से पूर्णिमा पालन करो तो उसमें कोई अच्छा है, लेकिन एकादशी से लेकर शयन एकादशी से लेकर उत्तान एकादशी तक ये जो व्रत पालन करने का जो विधान है, इसमें व्हाट इज द वाइटल पॉइंट, इसमें वाइटल पॉइंट क्या है? ये जो महाराज शयन एकादशी उत्तान एकादशी भागवत जी महापुराण का अंदर में भी हम आपको दिखाएंगे भागवत जी महापुराण का अंदर में, दूसरा शास्त्रों में तो है ही है, वो तो है, यहाँ तक कि भागवत जी महापुराण का अंदर में यहाँ भी पहला स्कंद में नारद जी महाराज भागवत जी महापुराण का जो पहला स्कंद का फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड, फोर्थ, इसका अंदर में देखोगे नारद जी महाराज जी का साधन सिद्धो नारद जी महाराज, साधन सिद्धो नारद जी जिनके पूर्व जिंदगी का कहानी व्यासदेव जी महाराज का व्यासदेव जी महाराज जी का सामने वर्णन कर रहा है। व्यासदेव जी महाराज जी के सामने नारद जी आए हुए हैं और नारद जी महाराज पहले उसका पहला जन्म में कैसे कैसे वो क्या किया इसका बारे में वर्णन है नारद जी महाराज का। वहाँ लिखा हुआ है नारद जी महाराज एक ऐसा जगह रहते थे जहाँ पहाड़ी चट्टी और नदी भी है सुंदर, चारों ओर फूल फल का बगीचे लगे हुए हैं और यज्ञों का लिए काष्ठों सूखा लकड़ी भी मिलता है, ऐसा व्यवस्था है। इसीलिए एक संत महात्मा का झंडू उसी रास्ते से जाने के समय में सोच विचार किया कि महाराज अभी चौमासा शुरुआत होने वाला है तो हम लोग इसी जगह रह जाएंगे, बगल में नदी है और चारों ओर फूल फल का बगीचे लगे हुए हैं और सूखा लकड़ी भी मिलेगा, रसोई यज्ञों का लिए सारे सुंदर है और पहाड़ी चट्टी है, मनोरम परिवेश, वेरी सीनरी बहुत सुंदर। तो वो लोग विचार करके चौमासा वहाँ पालन करने का व्यवस्था किया है। इसी का चक्कर में नारद जी महाराज जी का ये संत महात्मा का संग मिला है, एक बहाना है। ये संत महात्मा का जो झुंडू है, एक दल है, ये लोग चौमासा उसी जगह में रहे, साधन भजन किए, भोग राग किए, ठाकुर जी का पूजन जप ध्यान किए, हरि कथा कीर्तन किए। और ये जो बच्चा है नारद जी आपका पूर्व जन्मों का कहानी बता रहे हैं कि हमने इस बात का सत्संग का हमने पूरा फायदा लिया। ये जो सत्संग का जो व्यवस्था हो गया हमारा तकदीर में, ये सत्संग का पूरा के पूरा फायदा हमने ले लिया, बड़ा सुंदर है। ऐसे तो वृंदावन में तो कीर्तन है ही है, ऐसे तो वृंदावन में कीर्तन चलता है, वृंदावन में ब्रजवासी लोगों का कीर्तन है। शाम रे से मिलने का सत्संग बहाना है, शाम रे से मिलने का सत्संग बहाना है, सत्संग बहाना है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का साथ आप मिलना चाहते हो तो सत्संग करो, वास्तविक सत्संग करो। ये सत्संग के द्वारा भगवान का कथा कीर्तन होते रहेगा और आप मालामाल हो जाओगे। सामरे से मिलने का सत्संग बहाना है, साधु संग करो। और भगवान उद्धव जी महाराज जी को उपदेश दे रहे 11 स्कंद में, वहाँ भी एक ही बात है। भगवान कह रहे हैं देखो साधु संग करो, साधु संग करने से बड़ा जल्दी हमारे पास पहुंच जाओगे। साधु संग करने से
बहुत जल्द हमारे पास पहुंच जाओ। बाकी जो स्वाध्याय अध्याय निरुद्धाय व्रतो उपवास तीर्थाटन कुछ भी कर लो, कुछ भी आपका जी भर के कर लो, लेकिन एक बात कान खुल के सुन लेना, सत्संग का मापिक कुछ नहीं है। सत्संग सबसे ऊपर है, सत्संग ऊपर कुछ नहीं। साधु संग करने से बहुत जल्दी से जल्दी आप भगवान का चरण में पहुंच जाओगे। क्यों? सतांग प्रसंज्ञात मम वीर्य संविद भवंती कर्ण रसायन कथा। साधु संग में क्या होगा? क्या होगा? ये तो सत्संग साधु संग में हरि कथा कीर्तन ही होगा, और क्या होगा? ब्रह्मा जी भी ये बताए, ब्रह्मा जी भी ये बताए ना। ब्रह्मा जी क्या बताए? ब्रह्मा जी एक ही बताए, ज्ञाने प्रयास मुदबास नमंति एव जीवंति सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम सने स्थिता सुतिगताम तनुवांग मनोभीर जे प्रयासो अजीतो जीतो पियोशिस्तो स्त्रीलोक्या। ब्रह्मा जी भी बताए हम ज्ञान का प्रयास प्रचेष्टा, हमारा जो ये बुद्धि है, ये बुद्धि का संचालन, हमारा ये बुद्धि का जो संचालन हम फेंक देंगे। ज्ञाने प्रयासम उदोबासो, आई कैन किक आउट। हम अपना तरफ से कोई मनमानी कोई प्रयास प्रचेष्टा नहीं करेंगे। ज्ञाने प्रयासम उदोबासो, तो क्या करोगे? नमंती एव, हम विनम्र भाव से त्रिनाद विसुनी झोंके गिर जाएंगे। कहाँ? विनम्र भाव लेके संत महात्मा का चरण में गिर जाएंगे। और क्या होगा? बोले ये लोगों का चरण का चरणांतिक में इन लोगों का, साधु संतों का जो चरण का सानिध्य है, ये चरण का सानिध्य में हम रहेंगे। क्यों? बोले संत महात्मा का सानिध्य में रहने से हरि कथा कीर्तन होगा, इनके आचरण है, आदर्श है, सब दिखने को मिलेगा। ये जो आचार आदर्श है संत महात्मा, ये देखने को मिलेगा ना। इसलिए ज्ञाने प्रयासम उदबस्व नमंती एव जीवंती, हाउ यू कैन लिव जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम। I can go on hearing Harikatha from the lotus feet of pure Guru Vaishnava. Gyane prayasam udavasa namanti eva jivanti sanmukh सन्मुख रीतम भवदीय वार्तम। भवदीय मना आपका जो कथा कीर्तन है अपराकित, इसी में लगे रहेंगे, आपका कथा कीर्तन में लगे रहेंगे। सन्मुख रीतम भवदीय वार्त स्थाने स्थिता, स्थाने स्थिता मने हम जगह पे रहेंगे। कौन सी जगह? स्थाने स्थिता, अर्थात आई कैन से नियर द लोटस फीट ऑफ गुरु वैष्णव। I don't like to withdraw myself from their vicinity. I can stay. Sthane sitaha sutigatam. They can go on speaking Harikatha, I can go on hearing. And after that I can clean my heart. The more I can hear, I can clean my heart and I can go to Bhagavan. Nitya Seva. That I can do. इसी व्यवस्था के लिए हम संत महात्मा के सन्निधि में रहेंगे। तो भागवत जी महापुराण में अगर देखो, पहला स्कंद में ही देखोगे, फर्स्ट कैंटो का पहला स्कंद का 1, 2, 3, 4, 5 इसी का अंदर में पूरा एकदम नारद जी महाराज वैष्णदेव जी को बता रहे हैं अपना सब कुछ, और ये सब नियम है। और ये बच्चा माता जी गुजर गए, ये तो लौता बेटा था माता जी का। पिता का कोई पता नहीं, पिता ही नहीं, पिता कहाँ है, पिता को देखा ही नहीं। माता जी का देख रेख में इनके पालन पोषण हुआ करता था। बीच में माता जी भी जगत से गुजर गए, एक सांप ने डांसा। सुबह के टाइम में अंधेरा में गो दोहन करने के लिए किसी
एक ब्राह्मण के घर में जा रहा था जहाँ नौकरी करती थी पैसा के लिए, और बाद में उसका मौत हो गया। और ये बच्चा का देखो, बच्चा, इसको रोना चाहिए था, माता गुजर गई, अब हम कैसे जिए। रोया तो नहीं है, सत्संग का इतना महिमा है, इन्होंने विचार किया आज माता जी मेरा जिंदगी का बंधन बन के रही थी, ये माता जी चली गई मतलब मेरा जिंदगी मुक्त है। नाउ आई एम फ्री फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम। अब हम जब जहां इच्छा तो चाहे। अब बच्चा चलना शुरू कर दिया, कुछ जानता तो नहीं कुछ रास्ता, बच्चाओं में खाना पीना नहीं है, पानी नहीं है कुछ, खेत खरवाट नदी नाला शहर गांव पार करते करते न जाने कहाँ जा रहे हैं। आते आते बड़ा भूखा प्यास से मारे एक तालाब, बहुत सुंदर तालाब का पास जाके रुक गया, और तालाब का पानी देखने में बड़ा अच्छा है, उसमें नहा धोआ किया, स्नान पान करके आचमन करके बैठ गया आराम से। और महाराज क्या कहे, अब ऐसे तो बहुत बहुत शरीर तो टूटा हुआ था, इतना पैदल गया, इतना सब कुछ किया, और थोड़ा सा महाराज एक वृक्षों का नीचे में थोड़ा सा अपना जो पृष्ठदेश है, पृष्ठदेश थोड़ा सा लगा दिया, और महाराज क्या कहे, थोड़ा सा तंद्रा ड्राउजीनेस आ गया। इसका अंदर में देखा एक झलक, बिजली का मापिक भगवान का दर्शन हो गया। एक बिजली, जैसे बिजली चमकता है आसमान में, जैसे बिजली चमकता है आसमान में, भगवान का दर्शन हो गया। बोले महाराज, इसके बाद भगवान झट से गायब हो गया, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। इसके बाद बच्चा आंखें खोला, भगवान कहाँ गया भाई, रोना शुरू कर दिया, हे हरि आप मेरे को दर्शन देने का बाद कैसे छुपा लिया आप। बहुत रोया। इसके बाद आकाशवाणी हुई, ये बच्चा सुनो, इसी जन्म में तुमको और दर्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी। क्यों? बोले दर्शन मिलेगा नहीं। कैसे मिलेगा? क्योंकि तुम्हारा जो अवस्था है, अभी गुरुचरण आश्रय नहीं किया, कुछ नहीं किया। आकाशवाणी हुई, अविपक्व कसायानम दुर्दर्शो अहम कुजोगी नाम। हम कुजोगी, जिसका अभी जोग रंधित तो कसायो, जो गजेंद्र मोक्षण ने लिखा है जोग अष्टम स्कंद में, जोग रंधित तो कसायो, गुरु वैष्णव का अनुगत में करते करते जोग रंधित तो कसायो, जोग रंधित तो कसायो मतलब अंदर में जो कसाय है, जो अनर्थ है, सब का सारे के सारे इसको जला के खाक करके खत्म कर दिया। जोगो रंधी तो कसायो, तो ये माने समझ लो अभिपक्व कसायानम दुर्दशोहम कुयोगिनम, अर्थात जिसका अभी पक्का अवस्था हुई नहीं, जो अभी उसी अवस्था में पहुंचा नहीं, हम दर्शन लेने का काबिल नहीं है। दर्शन लेने का, दर्शन कैसे करें? तो फिर हम दर्शन नहीं दे सकते, लेकिन आशीर्वाद किया अगले जन्म में आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब है चौमासा बोतो पालन करने का बाद नारद जी का अंदर में इतना पक्का पावर आया, गुरु वैष्णव संत महात्मा का कृपा आया कि मत पूछो। अरे बाप, मालामाल हो गया। एक चौमासा बच्चा है, कुछ समझता भी नहीं, देखो क्या बात है। और भागवत जी महापुराण में महाराज 10वां स्कंद में आगे चल के आप आगे बढ़ो, 87 चैप्टर में, वहाँ भी श्रुति स्मृति सब अपना स्वरूप पकड़कर, श्रुति स्मृति सब अपना स्वरूप पकड़कर भगवान ये चौमासा का अंदर में 4 महीना जो स्वयं कर रहा है, स्वयं लीला भगवान का, स्वयं लीला से लेकर
ये वेदो स्तुति, वेद पुराण स्तुति कर रहा है, सारी कर रहा है। कहाँ तक? उत्तान एकादशी तक। ऐसा विधान भागवत जी महापुराण में है। चौमासा को असम्मान करे तो किसी का मंगल नहीं हो सकता। आजकल परम किसी से मैं कह रहे हैं, एक महीना अर्थात व्रत महीना कार्तिक महीना कोई पालन करने का आजकल सब व्यवस्था कर लिया है। चौमासा में 3 महीना मानता ही नहीं, कुछ छोड़ दिया। इनके लिए मुसीबत है। पूरा चौमासा ही पालन करना चाहिए, नहीं तो होगा नहीं, किसी भी हालत से होगा नहीं। कैसे हो सकता? अब हम लोग स्वाधीन हो गया, गुरुवर्ग चला गया, हम लोग स्वाधीन हो गया। शिला सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने ये चौमासा का व्हाट इज द नेट आउटकम एंड व्हाट इज द मोस्ट वाइटल पॉइंट, चौमासा का अंदर में कौन सी ऐसा राज है सीक्रेट, उसको पालन करना चाहिए। शिला सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर जी चौमासा व्रतों का बारे में बताया, कार्तिक व्रतों और पुरुषोत्तम सारे के सारे, और बताते हुए बताया देखो ये जो विधि निषेध है, विधि निषेध तो है ही है, ये तो है ही है, लेकिन ये सारे के सारे विधि निषेध का पीछे छुपा हुआ एक रहस्य है, एक सीक्रेट मिस्ट्री इज देयर। चौमासा बोतो इज अरेंज्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड टू अलाउ अस द स्कोप टू सिंग द ग्लोरीज ऑफ भगवान कंटिन्यूअसली। चौमासा का व्यवस्था का मतलब है, चौमासा का जो व्यवस्था है इसका सीक्रेट उद्देश्य क्या है, इसका राज क्या है। क्योंकि चौमासा का अंदर में वो क्या करेगा, भार बखत भगवान का कीर्तन गुणगान करे। नन बट नोबडी नाउ डूइंग दिस। चौमासा द मेन सिस्टम, मेन व्यवस्था जो है चौमासा का अंदर में कंटिन्यूअसली नाम संकीर्तन हरि कथा। बट हु कैन डू, कौन करेगा? चौमासा का अंदर में कंटिन्यूअसली हरि कथा कीर्तन, यथा यथा आत्मा परिमज्जत सौ मत्कुंद गाथा सवनो विधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषा वो अंजन संप्रयुक्त। सेम सिस्टम। जैसे जैसे आप हरिकथा कीर्तन में आपका लगन, जैसे जैसे आपका हरिकथा कीर्तन में लगन बढ़ते चलेगा, यूं समझ लो कि अकॉर्डिंग टू दैट प्रोपोर्शन आपका हृदय का मांजन, प्यूरिटी जगते रहेगा। भगवान का कथा कीर्तन सुनते 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 हृदय निर्मल हो जाएगा, चेतो दर्पण मार्जन क्रिया हो जाएगा। जो चेतो दर्पण मार्जन महाप्रभु जी ने बताया ना, फर्स्ट श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम से गौरव जंदिका वितरणम विद्यावधुरीवनम आनंदान्मुदिवर्धनम पतिपदम पूर्णामित्वा स्वादनम सर्वात्म स्नवनम परम विजयते श्री कृष्ण संकेत। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य यही बात को बताए, यही बात को बताए। महाप्रभु हर वक्त नाम संकीर्तन हरि कथा लेगा, वाह कुछ नहीं। ऐसा करते करते भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, ये खाना माना है, ये खाना माना है, ये करना माना है। एंड द स्पेशल पॉइंट इज दैट कार्तिक व्रतो, दामोदर व्रतो और इफ पॉसिबल टोटल चौमासा, पूरा चौमासा, बेटर यू विल हैव टू स्टे इन धाम in front of Sadhu Guru Vaishnava. It is the main system. धाम का अंदर में रहो, हर वक्त धाम का चिंतन, हर वक्त धाम का चिंतन, धाम का अंदर में रहो, साधु गुरु वैष्णव के साथ रहो, भजन करो, कीर्तन करो, यही विधान है। कार्तिक व्रतो स्पेशली, इफ नॉट चौमासा व्रतो, यदि अगर संभव है, if it is possible for you to stay whole Chomasa in Purushottam Kitto or Navadvip or in Vrindavan, is more practical. If not possible, 1 month.
Like Gauranga Mahaprabhu, all Parsad, they used to go and stay 4 months at a time. At present, if not possible, at least Kartik. What to do? Nothing to do. So, Bhaktivinoda Thakur final conclusion, Bhaktivinoda Thakur का final conclusion ये है कि जितना सारे नियम नीति पालन करो, सब ठीक है. भागवत जी महापुराण का ग्लोरिफिकेशन, not Padma Puran, what I am going to speak tomorrow. Again, Skanda Puran also, and in other places, there also. Bhagavad Gita glorification are there. Has some speciality, more or less same, but has some speciality. Here they are going to discuss from this angle, they are discuss from this angle, all different angle they are going to show. Glorification of Bhagavad Gita Mahapuran. Bhagavad Gita Mahapuran का glorification दिखा रहे हैं, लेकिन मोर और लेस एक ही बात है, सब में एक ही बात पक्का है, जे ये चौमासा व्रतो पालन करने जाओ तो इसका अंदर में आपको हर वक्त भगवान का नाम कीर्तन कथा कीर्तन का अंदर में डूबे रहो, और कुछ नहीं. जितना सारे विधि निषेध है, सब विधि निषेध, यहाँ तक कि if you are sitting to hear Harikatha with full brata, austerity and penances, if it is against your natural habit, you cannot bear so much fasting, oh, you cannot hear Harikatha, you are feeling this. You have no capacity to hear Harikatha, you are feeling weak. Harikatha going on, okay. Then it is far better to take prasadam sufficient. Bhaktivinoda Thakur कह रहे हैं, अगर one time prasadam is sufficient for you to attain Harikatha and do all sevas, not that after fasting you can sleep 8 hours, 9 hours. Not that. Is again. तो इसका मतलब है, यदि अगर if your body cannot permit by taking one time prasad, better you can take 2 times. Or 2 times also trouble, 3 times you can, but pay attention to Harikatha Kirtan. If not so, all you. अगर आपका लिए ये व्रत पालन करना बहुत कठिन है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना, आपको हरिकथा कीर्तन में लगन लगाना है. इसका लिए जो आपका शरीर के लिए फायदादायक है, उतना ही वैराग्य करो, उतना ही सफिशिएंट. ज्यादा करने जाओ तो हरिकथा कीर्तन जो मेन पॉइंट है, ये छूट जाएगा. अब व्रत का कोई माने नहीं रखेगा. चौमासा व्रत किस लिए करोगे? दिखाने के लिए. हमने ये व्रत प्लान किया, एक बार खाया. वृंदावन धाम में ऐसा बहुत सारे नाटकबाजी चलता है. एकाहारी बाबा, फलाहारी बाबा, धुनी बाबा, दूध पीता बाबा, चिमटा बाबा, धुनी बाबा, ये सब चल रहा है. तो क्या कीमत है? बाबा तो वो है. प्रभुपाद जी कहते थे, somebody putting question to Prabhupada, who is sadhu? Prabhupada in one word, who is always busy to do something for Guru, Vaishnava, Bhagavan, all the time, without any interruption, he is sadhu. And in another, दूसरा जगह प्रभुपाद जी ने बताए, हर वक्त नाम संकीर्तन में डूबे रहते हैं, he is sadhu. He who is always absorbingly doing Nam Sankirtan, Harikatha, Kirtan, he is sadhu. One word. He who is doing Nam Sankirtan, Harikatha all the time, he is not feeling detested, feeling energy. He is sadhu. Ye sadhu ka, that is the identity. Naam gane sada ruchi. Naam gane sada ruchi. That is the vital point. How to understand a sadhu. बस this much I like to discuss. आज यहाँ तक चर्चा का खत्म करें. आज चौमासा व्रतों का चर्चा. अहो भाग्य से गुरु गौरांगो गांधार्विका गिरधारी लाल का कृपा से नवद्वीप धाम गंगा जी का किनारे
संत महात्मा लोगों का सानिध्य में हम लोगों का एक महीना काल व्यापी सत्संग का एक व्यवस्था हो पाया। ठाकुर जी व्यवस्था कर दिए और इसका फायदा लेना ही है। इसी विचार से हम आप लोगों का कृपा लेके हरि कथा कीर्तन में हर वक़्त डूबे रहेंगे, ये आशीर्वाद मांगते हुए यहाँ ही चर्चा का विश्राम दे। अब तो उपाय नहीं। असार संसार खलु दुक्षरूप विमोका सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहोवान जलते अनीशम न च इंद्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। वांछकल्पतरुश्च कृपासिन्धु पतितानं पावनं वैष्णवेभ्यो।